नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मिशन इंद्रधनुष 4.0 कार्यक्रम का उद्घाटन। सरकार द्वारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्य मजदूरों का चेकअप। बजरंग दल कार्यकर्ता हत्याकांड, पुलिस ने 10 संदिग्धों के खिलाफ लगाया यूपीए। निर्मला सीतारमण का ड्रीम प्रोजेक्ट मैसूर में शुरू हुआ, 81 करोड़ रुपए का तारामंडल। पीएम मोदी ने की पुतिन से बात, दिया एक खास सुझाव। यूपी में 7वें चरण की वोटिंग, मतदान आज हुए। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। भारत सरकार ने 7 मार्च, 4 अप्रैल और 9 मई को टीकाकरण न करवाने वाले बच्चों का टीकाकरण करने के लिए एक विशेष मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर रतिकांत स्वामी ने जनता से अनुरोध किया है कि कार्यक्रम को सफल बनाए। आज उन्होंने बीदर शहर के शाहगंज, मंगलपेट, अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रम के अवसर पर बात की। निर्माण कार्य मजदूरों के लिए सरकार द्वारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की बात जिला लेबर अधिकारी श्री हरि देशपांडे ने कही है। वह केपी चैनल के माध्यम से जिले के सभी मजदूरों को इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मजदूरों को 21 रोगों की मुफ्त जांच की जाएगी। ನಾನು ಶ್ರೀಹರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಡಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೆಪಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ। ಅವಲಂಬಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ನೋಂದಣಿಯಾದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕಪ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಬೀದರಲ್ಲಿದೆ। ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ 20 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾರು ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪತ್ರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಈ 20 ಚೆಕಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ತಮಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಿ ಪಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ। ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ನು ಇರ್ತದೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಡಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ವಿಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, CBC ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ESR ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದೆ, ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ರೀನಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಲೇರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈವನ್ ನೀವು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B, C ಅಂತ ನಾನಾ ಥರದ ರೋಗಗಳೇನಿವೆ 21 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಗಳಿವೆ, ಅವರ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೆಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನ್ಯೂಸ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೂ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಡೇಟನ್ನು ಈ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಬಂದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈ ಮಾನಧನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 3,000 ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ। ಅದು ಸಪ್ತಾಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 7ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ಇದೆ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ 3,000ವರೆಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡಿಬೋದು। ಈ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 8,000ರಿಂದ 10,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಡಳಿ
ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक पुलिस ने राज्य के शिमोगा क्षेत्र में 20 फरवरी को बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 10 लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 की धाराएं लगाई हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 27 वर्षीय हर्षा की हत्या के आरोपियों के खिलाफ यूपीए के तहत आरोप लगाते हुए मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के कगार के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैसूर विश्वविद्यालय परिसर में आने वाला कॉस्मोस वास्तविक समय के आधार पर आकाश को देखने के लिए सिर्फ एक तारामंडल से अधिक होगा, क्योंकि यह डेटा प्रदान करेगा जिसका उपयोग युवा वैज्ञानिकों द्वारा किया जा सकता है। अत्याधुनिक तारामंडल कॉस्मोस की आधारशिला रखने के बाद सीतारमण ने कहा, यह सिर्फ एक तारामंडल नहीं है जिसके लिए आप सभी एकत्र हुए हैं, एक तारामंडल, लेकिन यह एक तारामंडल से कहीं अधिक है। आपको वह सभी डेटा देने जा रहा है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने 2062 करोड़ रुपए की 48 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो राज्य में 6393 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी की बैठक में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। निरानी के अनुसार पैनल ने 1275.67 करोड़ रुपए की 7 महत्वपूर्ण बड़ी और मध्यम आकार की औद्योगिक परियोजनाओं पर विचार किया है और उन्होंने मंजूरी दी, जिससे राज्य में 3181 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बीजापुर निवासी सुचित्रा नामक छात्रा जो यूक्रेन मेडिकल करने गई थी, वह आज अपने सहारा बीजापुर पहुंचकर अपने परिवार से मिली और युद्ध के हालात और अपने साथियों के संबंध में बताया। बीजापुर से हमारे संवाददाता सज्जाद पाशा का कवरेज। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। देखते हैं आगे के समाचार। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।5283920 8482221297। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। ये बातचीत 5 मिनट लंबी हुई है। इससे पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की। बातचीत के दौरान पीएम ने पुतिन से कहा कि प्रतिनिधिमंडल के अलावा वो खुद सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करें। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन के सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सहायता देने का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने भारतीय नागरिकों को युद्धग्रस्त इलाकों से निकालने के लिए मदद देने के लिए धन्यवाद भी किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर हुई बातचीत के बाद कहा कि रूसी हमले के मुकाबले के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया है। युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता और उच्चतम स्तर पर शांतिपूर्ण वार्ता के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता की भारत ने सराहना की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत आज 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। इस फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है।
इस चरण में राज्य के 2.06 करोड़ मतदाता 613 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में आजमगढ़, महुआ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हुए। दैनिक नए कोविड मामलों में तेजी से गिरावट और महामारी के धीरे धीरे कम होने की वजह से हैदराबाद में एक बार फिर से दौड़ का बंदोबस्त किया गया। रविवार को हैदराबाद के करीब 10,000 लोगों ने 2 अलग अलग स्थानों पर, एक नेकलेस रोड पर और दूसरा दुर्गम चेरवू केबल स्ट्रे ब्रिज पर रनिंग इवेंट्स में भाग लेने के लिए आगे आए। फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के लिए यह एक खास मौका होता है। नेकलेस रोड पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने रविवार को जेंडर इक्वालिटी रन का आयोजन किया, जिसमें छात्रों, गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से 5,000 से अधिक महिलाएं शामिल रहीं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने जेंडर इक्वालिटी रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर रनिंग इवेंट थे। उन्होंने कहा, तेलंगाना पुलिस ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और इसलिए शी टीम्स लॉन्च की गई हैं। हैदराबाद महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बुडापेस्ट से फंसे 6,711 भारतीय छात्रों के अंतिम जत्थे के साथ आज हंगरी से लौटे। केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश के युवा अब अपने अपने घर पहुंच सकते हैं और अपने माता पिता और परिवार वालों से मिल सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया, बुडापेस्ट से हमारे 6,711 छात्रों के अंतिम जत्थे के साथ दिल्ली पहुंचने पर खुशी हुई। युवाओं के घर पहुंचने और जल्द ही अपने माता पिता और परिवारों के साथ होने से खुशी, उत्साह और राहत मिली है। मशरक सारण में लगभग 2.5 दशक बाद एक बार फिर नंदी के दूध पीने की अफवाह फैल रही है। रविवार को सबसे पहले मशरक के तख्त टोला में यह मैसेज वायरल हुआ। लोग मंदिरों में पहुंचकर नंदी को दूध पिलाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद मशरक में अफवाह फैली। शाम होते होते मशरक स्टेशन शिव मंदिर में यह अफवाह तेजी से फैल गई, जिससे मंदिरों में महिला पुरुष की भीड़ उमड़ पड़ी। मशरक तख्त स्थित शिव मंदिर में नंदी के दूध पीने का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। कुछ ही देर में महिलाओं की भीड़ पहुंच गई। नंदी को दूध पिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। मंदिरों में सैकड़ों लोग नंदी प्रतिमा को चम्मच से दूध पिलाते नजर आए। स्थानीय नागरिक उमेश बाबा ऋतिक राजवाड़ा ने कहा कि दूध या पानी भरा चम्मच लगाते ही दूध और पानी गायब हो रहा है। बताइए, हमें मालूम चला कि शंकर भगवान जी के मंदिर में नंदी भगवान दूध पी रहे हैं। दूध हम लेके गए, एक कटोरा हम लोग पिलाए, सच में दूध पिए। दक्षिणी यूक्रेन में घिरे बंदरगाह शहर मारियुपोल से नागरिकों को निकालने का प्रयास सफल नहीं हो सका। मॉस्को और कीव ने दोनों ने ही इसके लिए युद्ध विराम उल्लंघनों को जिम्मेदार ठहराया। युद्ध अब अपने 12वें दिन में है और अब तक इसके कारण 15 लाख लोग यूक्रेन से भाग गए हैं। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को भी चेतावनी दी है और कहा है कि यूक्रेन के विमान उनके क्षेत्र का उपयोग न कर पाए, नहीं तो मॉस्को उन देशों को भी संघर्ष का हिस्सा मान सकता है। यूरोपीय संघ के नेता चार्ल्स मिशेल ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की यूक्रेनी हवाई क्षेत्र पर नो फ्लाई जोन लागू करने की अपील पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसा करने से विश्व युद्ध छिड़ सकता है। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 फिल्मी पर्दे की वो कहानियां जिन्होंने महिलाओं को खुद पर यकीन करने की वजह दी। देखते हैं खेल जगत के समाचार। जडेजा में रन बनाने की काफी भूख, टीम के लिए अच्छा करते हैं रोहित शर्मा। देखते हैं समाचार बाजार के। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 14 साल के हाई पर क्रूड ऑयल। भारत में कभी भी बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मिशन इंद्रधनुष 4.0 कार्यक्रम का उद्घाटन। सरकार द्वारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्य मजदूरों का चेकअप। बजरंग दल कार्यकर्ता हत्याकांड, पुलिस ने 10 संदिग्धों के खिलाफ लगाया यूपीए। निर्मला सीतारमण का ड्रीम प्रोजेक्ट मैसूर में शुरू हुआ, 81 करोड़ रुपए का तारामंडल। पीएम मोदी ने की पुतिन से बात, दिया एक खास सुझाव। यूपी में 7वें चरण की वोटिंग, मतदान आज हुए।
केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।